update that we are getting on the Dumka case. Sections of the POSCO Act have been added in the FIR in the case. To remember that earlier the CWC had asked the police to add these sections under the POSCO Act since the committee that was investigating this from the CWC's side had found that Ankita, who had unfortunately passed away in this accident, in this attempt to murder, was actually 15 years old and not 19 as earlier reported by the police. So now we're getting to understand that the accused has also been charged with sections under the stringent POSCO Act. This is a huge development. What this means is that the accused will now have to face charges which are much more grave than attempted murder. Now do remember that Ankita had been doused with petrol and set on fire by the accused who had been harassing her. Thereafter, there have been lapses from the government side as well, because she wasn't provided the requisite care that a burn victim should be provided. She unfortunately passed away after battling her wounds for nearly a week. In this particular case, one person has been, the main accused has been arrested, and his accomplice also has been arrested. Now we are given to understand that the stringent POSCO Act is also being put in the FIR. Lomas is on the phone line with us. He brings us more details. Good morning, Lomas. Give us more details in terms of what sections of the POSCO Act are being added in the FIR. बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले एज को लेकर के परिवार से जद्दोजहद हो रही थी। परिवार साफ तौर पे कहते आ रहे थे कि हमारी बेटी की उम्र 15 से 16 साल का है, लेकिन पूरे एफआईआर में पहले 19 एज दर्ज की गई थी, जिसके बाद परिवार लगातार गुहार ये लगा रहा था कि मेरी बेटी का एज ठीक किया जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अब CWC ने अपनी जो रिपोर्ट भेजी है उसमें 15 साल एज बताई है, और साथ ही अब पूरे एफआईआर में 15 साल एज कर दी गई है यहाँ पर। और इस पूरे मामले में पॉस्को एक्ट भी लगा दिया गया। अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो अपराधी है उनको सख्त से सख्त सजा मिल पाएगी। और साथ ही आपको एक और अपडेट मैं देना चाहूंगा, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, जो रांची में पोस्टमार्टम अंकिता का हुआ था, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे दुमका पुलिस को भेज दी गई है। और साथ ही उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अत्यधिक ज्वलन पदार्थ से अंकिता को जलाया गया, जिसके कारण शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर दिए थे। Right. Also, Lomas, obviously there were lapses in terms of the care that was provided to her, because she did speak to the media, which is now being considered a dying declaration. And, you know, there are allegations from the family's side that she should have been provided with better hospital care. तो आपने सही कहा। अगर अंकिता ने जिस तरीके से अपना बयान दिया था अस्पताल में, और साथ ही अगर अंकिता को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिल पाती तो अंकिता आज हमारे बीच जिंदा होती। परिवार लगातार इस तरह के आरोप लगाते आ रहा है, और साथ ही परिवार ने यह भी कहा है कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था और उपचार अंकिता का समय पे अच्छा हो पाता, या अंकिता को एयरलिफ्ट करके दिल्ली भेज दिया जाता, तो अंकिता आज हमारे बीच जिंदा होती। क्योंकि पोस्टमार्टम में भी ये कहा गया है कि साफ तौर पर अंकिता को अत्यधिक ज्वलन पदार्थ से जलाया गया है, जिसके कारण धीमे धीमे करके जो अंकिता के शरीर के जो पार्ट थे वो काम करना बंद कर चुके थे। All right, Lomas reporting on that. Thank you for joining us. Let's also listen into reactions that we are getting from various political leaders. Here's what Manoj Tiwari and Kapil Mishra said. सलाखों के पीछे होने के बावजूद भी हंसते हुए नजर आया। इसका मतलब है कि ये एक्सीडेंटल केस नहीं है, ये सुनियोजित घटना है। जब एक्सीडेंटल कुछ केस होते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट होते हैं, तो उसमें कहा जो अपराधी है, जो एक्यूज्ड है, उसको अपने किए पे पश्चाताप होता है। यहाँ तो सुनियोजित है। उसको पता है किस खिड़की के पीछे लड़की सो रही है, आज खिड़की खुली है या बंद है देखता है, उसके बाद प्री प्लान तेजाब या पेट्रोल लेकर के खड़ा है, उसके ऊपर फेंकता है, और जब बच्ची को लगा रही है पानी वानी किसने फेंका, तो तुरंत उसके ऊपर माचिस की तीली मारता है। तो ये, और इसके तार अभी विदेशों से जुड़ रहे हैं, बांग्लादेशी ऐसे देश विरोधी तत्वों से जुड़ रहे हैं, PFI से जुड़ रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इस केस में जो संदिग्ध अधिकारी हैं उनको हटाया जाना चाहिए, और इस केस का बिल्कुल तह तक जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आज अगर इस घटना पे हम नहीं जगे, नहीं इसको तह तक ले गए,
तो कल ऐसी घटनाएं कितनी हो सकती हैं समाज में, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। Now, the NCPCR chairperson Priyank Kanungu will visit Dumka district on the 4th and 5th of September to take stock of the status of the Jharkhand killing case. Days after Ankita was cremated, the calls for justice over her murder have only grown louder. In a shocking turn of events, the Jharkhand Child Welfare Committee asked for POCSO to be invoked against the accused after it was found that Ankita's age was increased to 19 in the complaint copy when her real age, in fact, was 15 years and 9 months. Following this shocking discovery, the NCPCR chief Priyank Kanungo is expected to visit Dumka on 4th September to take status of the matter. Three BJP leaders Nishikant Dubey, Manoj Tiwari and Kapil Mishra visited Dumka yesterday. The BJP delegation met Ankita's family and gunned for the Jharkhand government, pointing to various lapses leading to Ankita's death. सरकार का हेलीकॉप्टर नदी बंसारी के लिए गया तो अंकिता के लिए क्यों नहीं गया? वो बच्ची मरने वाली नहीं थी, किसी स्थिति में अंकिता मरने वाली नहीं थी। अंकिता का बयान, अंकिता का वीडियो पूरे देश ने देखा है। वो बोल रही थी, वो बात कर रही थी, आराम से उसको ठीक किया जा सकता था अगर सरकार गंभीर होती। सरकार अपनी पिकनिक मना रही थी। निशिकांत जी खड़े हैं यहाँ पर, मनोज जी दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, विधायक नहीं आ रहे हैं। चुनी हुई सरकार मामले की लीपापोती कर रही है। डीएसपी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो डीएसपी अभी तक हटाए क्यों नहीं गए यहाँ से? कैसे अपने पद पर बैठे हुए हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। Kapil Mishra also demanded a probe into the love jihad angle. गुस्सा, आक्रोश इस बात का भी है कि इतने दर्द में एक बेटी तड़पती रही, लेकिन ये सरकार की पिकनिक खत्म नहीं हुई। सरकार परिवार के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही, इसका आक्रोश है। शाहरुख और शाहरुख के भाई का पीएफआई से क्या कनेक्शन है? बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से क्या कनेक्शन है? ये किसी सिरफिरे आशिक के द्वारा की गई हत्या नहीं है। Bureau Report, Republic TV. Prakash, he's from the BJP. Mr. Prakash, good morning. Thank you for speaking to us on Republic TV. Mr. Prakash, क्या आपको लगता है कि बहुत सारे lapses हुए हैं from the side of the government? For one, proper medical care जो दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी, and that is one of the reasons why she unfortunately lost her life, because if you see that dying declaration, she was speaking to the media and she was very lucid. नहीं, ये सच है कि अगर घटना घटने के पहले लगातार उसके परिवार और उसको लगातार परेशानी और तंग करने का काम वो जो आरोपी है वो लगातार करते रहा, और वो आरोपी लगातार करते रहा, ये गुहार लगाते रहे इनके परिवार के लोग प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पास, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। पहली बात, घटना के पहले की बात, घटना जिस दिन हुआ, घटना के बाद 12 घंटे तक दुमका के हॉस्पिटल में किनारे उसको किसी तरह से लवारिस हालत में रखने का काम वहां की जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने किया। उसके बाद जब वो अपने पैसे के इंतजाम के बदौलत जब वो रांची के रिम्स हॉस्पिटल में आई, तब उसको जनरल वार्ड में रख दिया गया। आपको सब कोई जानते हैं कि बर्न के केस में इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन यहाँ के जो राज्य की सरकार और पूरी कह सकते हैं कि इन चीजों पर गंभीरता से विचार नहीं किया, और जब वो पूरी तरह से अपने आप को उसके पूरे परिवार के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े थे, वो नहीं, अर्थ उनके पास नहीं था, पैसे नहीं थे, गरीबी की हालत से जिंदगी जीने वाले वो परिवार था, उसको अगर हायर सेंटर में भेज दिया जाता दिल्ली में, तो आज ये स्थिति नहीं होती, वो आज हम लोगों के बीच में होती। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसी प्रकार की घटना को सरकार ने कोई संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया, तो दूसरे तरफ एक पत्थरबाज जो मेन रोड में अपराध कर रहा था, अपराधी की भूमिका थी, मंदिर में पत्थर फेंक रहा था, वो जब घायल होता है तो राज्य की सरकार एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेज करके उसको उसकी जो मेडिकल सहायता देने का काम किया। तो ये कैसे चलेगा? ये तुष्टीकरण की राजनीति इस राज्य में सबसे दुर्भाग्य, मैं 1 मिनट में अपनी बातों को खत्म कर दूंगा 30 सेकंड में, कि जिस प्रकार से जो अपराधी है, अपराधी के साथ जो नईम करके एक और जो को एक्यूज है,
वो क्यों किसका संबंध नहीं, इनका संबंध बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन से है। ये चीजें सामने आई हैं, इसलिए इस प्रकार की घटना के पीछे धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का है। और इसलिए सरकार को पूरी तरह से, केंद्र सरकार से भी आग्रह, मेरा निवेदन है कि इस मामले को NIA से जांच करानी चाहिए, क्योंकि इसके एंगल, इसके तार बांग्लादेशी के आतंकवादी संगठन से है, जो झारखंड में लगातार PFI और बांग्लादेशी एक ऐसा आतंकवादी संगठन है तो यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। ऑल राइट, दीपक प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दैट वाज द BJP चीफ फ्रॉम झारखंड, दीपक प्रकाश, आस्किंग फॉर NIA probe into the alleged murder of Ankita.